Hello everyone. So we are having the second class over active and passive voice, and I'm your English tutor. My name is Justice. So today we are going to talk about some more applications for active and passive voice. So before we begin, we may go through the homework which was given to you. So I gave you some sentences, and you were told to convert those sentences into passive voice. So let us see what were those sentences and what will be the correct passive forms of those sentences. The first one was the chef cooks delicious meals. The chef cooks delicious meals. So those who haven't answered, they can answer in comment section, and those who have answered, they can just match it. So here the chef is primary. So this is active voice, and we have to convert it to passive voice. Then we will make the object primary. That is delicious meals. So delicious meals. Now meals are written here. So meals means this is singular or plural. Delicious food. Okay, if delicious food was given, then it is can be used. Was it delicious food or meal? If it was meals, then remember that is plural. That's why you will be adding are, not is. If it was meal or food, then it is okay. You can use is. Okay. So then delicious meals are cooked by the chef, or delicious meal is cooked by the chef. Because I got this as meals from Suhani ji and from Deepa ji. So it will be delicious meals are cooked by the chef. And remember Suhani ji, the chef में आपने जो टी कैपिटल बनाया उसको थोड़ा बनाएंगे. Only first letter will be capital, and rest other will be in lower case because there is no particular proper noun which is to be highlighted as कैप्टन. तो यहाँ पर आपको डेलिसियस मील्स आर कुक बाय द शेफ या फिर डेलिसियस फूड इज कुक बाय द शेफ जो सर्विस ने किया है या फिर डेलिसियस मील इज कुक बाय द शेफ. ओके. नेक्स्ट सेकंड sentence was she writes a letter. She writes a letter. So here she is primary, that is subject, and a letter is an object, so that is secondary. So what we'll be doing, we will be doing the just opposite of it. So object will be primary here, that will come as subject. So a letter will come in the beginning. Correct, Ninisi, a letter is written by her. Why didn't you share your homework? Write the reason. A letter is written by her, that is correct. A letter, it is considered as subject here in passive voice, and she, that is considered as object. So that the objective case of she is her. A letter is written by her. Good. Next, they clean the classrooms every day. So they is primary because that is subject, and classroom, that is object, that is secondary. So you must convert this into passive voice. They clean the classrooms every day. Do it, everyone. So classrooms. The classroom or classrooms. Okay, Suhani ji has written it in classrooms, and Deepa ji has written classroom. If classroom is written, then is will be used. If classrooms are written, classrooms, the word classrooms is written, then you will be using are. Remember that. Everyday classroom is cleaned by them. If you are adding every day in the beginning, you must add comma or, because every day is not an object. Remember that. क्लासरूम आपका ऑब्जेक्ट है मैम जी, तो यहाँ पर द क्लासरूम आपका था. द क्लासरूम इज क्लीन बाय देम एवरीडे. एवरीडे आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कौन सा ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट के रूप में आगे लगाते हैं. ठीक है. अतुल जी ने किया द क्लासरूम्स आर क्लीन बाय देम. यस, क्लासरूम्स आएगा तो आर लगेगा, और क्लासरूम आएगा तो इज लगेगा. सिंपल सी बात है. प्लूरल आएगा तो आर, सिंगुलर आया तो इज. द क्लासरूम्स आर क्लीन बाय
them every day. That's correct. The classroom is cleaned by them every day. That's correct. True. Okay, next. Next sentence is the teacher explains the last. The teacher explains the lesson. The teacher explains the lesson. So the teacher is subject here, an object we can find that is the lesson. So the teacher is primary and the lesson is secondary. So you will do just opposite of it. Make it object will be made subject and subject will be treated as an object. As it was. So the correct answer is the lesson is explained by the teacher. Well done. Those who are writing the lesson is explained by the teacher, that is correct. Next, the lesson. Next, he drives the car carefully. He drives the car carefully. So here he is the subject. He is subject and car is an object. So he drives the car carefully. मैन जी याद रखिएगा केयरफुली को उठा के मत ले आइएगा बिकॉज केयरफुली आपका ऑब्जेक्ट नहीं है ठीक है ऑब्जेक्ट को ही लाना होता है उसको केयरफुली इज व्हाट दैट इज एन एडवर्ब द कार वॉज टू कर दिया अच्छा वॉच टू कर दिया मैन जी ने सेम छाप दिया है वॉच टू किया ही ड्राइव्स द कार केयरफुली वॉच कैसे आ जाएगा डिराइव्ड कर दिया आपने ड्राइवर की जरूरत ड्राइव ड्रोव ड्राइवर ड्राइवर so the correct answer is the car is driven the car is driven by him carefully that is correct यहाँ पर इन्होंने लिखा है द कार इज ड्राइवन केयरफुली बाय ये भी आपका एक्सेप्टेबल है so remember you can do both the right pronunciation for driven that is driven ही होता है right pronunciation फिर driven बोलेंगे driven the car is driven by him carefully driven okay the car is होगा was नहीं हो सकता यहाँ पर driven yes absolutely driven the car is driven by him carefully तो नेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेंगे आगे हम करते हैं वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर सावित्री जी हैज रिटन इट इन एडवांस इंडिपेंडेंस डे is celebrated by us every year करेक्ट ठीक है अगर एवरी ईयर को आगे लेते हैं तो कॉमा लगाइएगा वैसे ऑब्जेक्ट को ही हम केवल आगे लेंगे जनरली ठीक है तो एवरी एवरी ईयर कॉमा लगा सकते हैं वैसे या फिर इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड बाय अस एवरी ईयर एक चीज और बताना चाहूंगा आप यहाँ पे चाहें तो बाय अस को रिमूव कर सकते हैं यस गिव मी अ मोमेंट Independence Day is celebrated us by Independence Day is celebrated by us every year भी कर लिया इसका आप ऐसे भी कर सकते थे Independence Day celebrated every year आगे करेंगे आप The manager checks the reports इसका होगा The reports are checked by the manager ठीक है नेक्स्ट आप करेंगे
द स्टूडेंट्स रीड मैनी बुक्स, यहाँ पर हो जाएगा मैनी बुक्स आर read by the students. Many books are read by the students. Okay. नेक्स्ट है आपका द कंपनी सेल्स कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड, इसका करेंगे कंप्यूटर्स आर सोल्ड वर्ल्ड वाइड बाय द कंपनी। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर। आप लोग 5 पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल लिखेंगे अभी, ठीक है। क्रिएट 5 पैसिव वॉइस एग्जाम्पल्स। यस। Savitri ji has written the response. Food is cooked by Sita. Cricket is played by Mohan. Newspaper is read by them. A poem is written by her. I am beaten by them. Okay, well done. Others are also requested to write their response. यहाँ यही पढ़ बढ़िया। काय आग लग रही है तेरे? कुछ ना लग रही। डिक्शनरी कौन है?
Yes. So I received the responses. Atulji has written, a pen was given to me by her. The fan is distorted by him. The gate is opened by him. The bike was driven by him. The book is read by her. Movie, मयंक जी लिख रहे हैं, movie tickets are given to me by him. And मिनी जी लिख रही हैं, a book is read by her. Uh, the temple is gone by temple. कैसे? ये रॉन्ग हो गया आपका. The school is gone by them. The toy is brought by my father. Delhi is gone by her. Correct. The Deepa ji लिख रही है, the book is read by him. A letter is written by him. The food is cooked by him. Her. The scooty is driven by her. और he is helped by everyone. Helped everyone. नहीं, ये गलत हो जाएगा. He is helped बोल दीजिए. Everyone वाले केस में तो आता नहीं. Every day कर सकते हैं आप. He is helped. The bulb is broken by them. ठीक है. काफी लोगों ने अपना रिस्पॉन्स नहीं लिखा है. लिखिएगा. चलिए, इस तरह से आपने समझा होगा यहाँ पे. आप जैसे यहाँ पे पैसिव वॉइस बना पा रहे हैं, तो अब हम पैसिव में ही चीजों को कर सकते हैं. तो मैंने आपसे पूछा, बताइएगा मुझे कौन सा मतलब कि खाना पकाया जाता है, इंग्लिश क्या बनेगी? खाना पकाया जाता है, केवल खाना पकाया जाता है. अच्छा, खाना पकाया जाता है. टाइपिंग स्पीड इज सो फास्ट. ठीक है, कोई बात. खाना पकाया जाता है, कुकिंग कर रहे हैं आप. खाना पकाया जाता है. फूड इज कुकड. फूड इज कुकड. दो लोगों का आंसर आया है, सावित्री जी का एंड अतुल जी का. दैट्स करेक्ट. खाना पकाया जाता है, फूड इज कुकड या द फूड इज कुकड. अब आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो, आपने अपने बचपन में डेफिनेशन लर्न की होंगी ना, कि इट इज कॉल्ड दिस, है ना, इसको ये कहा जाता है. ऐसा मान लीजिए, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस. उसे वाक्य कहा जाता है ना. A group of words that makes a complete sense is called sentence. जब बोला जाता था is called, तो क्या चीज है वो? तो पैसिव वॉइस ही तो होती थी, है ना. तो he is named राहुल, है ना. ये जितना भी आप देख पाते हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें, इट इज कॉल्ड, ही इज नेम्ड एज राहुल, तो वो सब आपका पैसिव वॉइस ही होता है. खाना पकाया जाता है, तब इसको. अच्छा, गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है, बताइए. दिल्ली इज गॉन बाय हर. सर, इज इट करेक्ट? व्हाई इट वुड बी इनकरेक्ट? दिल्ली इज गॉन बाय हर. सही है, उसके द्वारा दिल्ली हुआ है. बताइएगा मुझे ये. गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है. यहाँ पर दिल्ली प्लेस ऐसे वैसे बोल रहे हैं क्या? विजिट होगा. विजिट. विजिट हो सकता है. और गो टू दिल्ली है तो वहां पे गलती नहीं हो कर सकते. जैसे एक सेंटेंस होता है, सी गोज टू दिल्ली. विजिट आपका यूज होता है प्लेस के लिए, बताया जाता है देखने के, तो आप विजिट ज्यादा बेटर है से बोल रहे हैं. तो दिल्ली इज विजिटेड बाई हर ज्यादा बेटर है, सही है, बिल्कुल सही है. विजिटेड कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि घूमा गया है, तो वहाँ पर विजिटेड ज्यादा बेटर है ऐसे कोई. तो आप यूज नहीं करें वहाँ पर जनरली, तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पैसे वॉइस का आपने यूज किया है, तो ज्यादा सेंस यही बनता है कि आपने
दिल्ली घूमा है जाकर के, तो प्लेस है, प्लेस में हम विजिट का ज्यादा यूज करें ज्यादा। सही है। सावित्री, दिल्ली इज विजिटेड बाई हर, विजिटेड। लैंग्वेज के परस्पेक्टिव से देखा। यहाँ पर आप लोगों ने कर लिया है इसका आंसर। द पुअर आर केयर फॉर फ्री, नहीं, ट्रीटेड सही है। द पुअर आर ट्रीटेड फॉर फ्री, करेक्ट। द पुअर आर ट्रीटेड फॉर फ्री सही है। आप पुअर पीपल्स, पीपल्स कैसे कर लिया, पुअर पीपल्स कैसे, पीपल पीपल ही रहा। ट्रीटमेंट, पुअर पीपल्स ट्रीटमेंट, आप पोस्ट ऑफिस लगा देते हैं आपको केस फ्री, लेकिन इलाज किया जाता है, बोलिए। द पुअर्स आर ट्रीटेड फॉर फ्री, द पुअर आर ट्रीटेड फॉर फ्री। कुछ लोग पुअर कर रहे हैं, कुछ लोग पुअर्स कर रहे हैं। जो पुअर है आपका एक एग्जेक्टिव एडजेक्टिव होता है ना। और जो एडजेक्टिव होता है उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। हाँ, जो आपने ऊपर कोशिश की थी किसी ने, पुअर पीपल, तो वहां पर एक ए नहीं लगाएंगे, पुअर पीपल बोल सकते थे, पुअर्स नहीं होता। जैसे गुड का गुड्स नहीं होता, गुड का गुड्स करेंगे तो एक गुड का मीनिंग होता है सामान, है ना। ऐसे ही पुअर का पुअर्स नहीं कर सकते, याद रखेंगे जिन्होंने पुअर्स किया है, आखिरी लोग किया है। द पुअर आर ट्रीटेड फॉर फ्री, ऑलरेडी वो एक एडजेक्टिव के रूप में ट्रीट किया जाता है, गरीबों का इलाज किया जाता है, तो डायरेक्ट आप पुअर ही कर लेंगे, पुअर पीपल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पुअर मैन भी कर सकते हैं, कुछ नहीं तो, ठीक है। क्लियर, तो ये आप कर लेंगे। तो द पुअर आर ट्रीटेड फॉर फ्री, दैट्स करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लूरल इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ बहुत सारे गरीबों को। तो नेक्स्ट लेंगे हम यहाँ पे, आगे बताएंगे आपको। अ, सबकी देखभाल अच्छे से की जाती है, सबकी देखभाल अच्छे से की जाती है, सबकी देखभाल अच्छे से की जाती है, सबकी, मतलब एवरीवन लगा सकते हैं, या ऑल का यूज भी कर देंगे, ऑल का करेंगे तो आर आएगा, एवरीवन लगाएंगे तो ए जाएगा। सबकी देखभाल अच्छे से की जाती है। एक रिस्पॉन्स आया है सावित्री जी की तरफ से, एवरीवन इज ट्रीटेड वेल। और लोग बताएंगे आप लोग, सबकी देखभाल अच्छे से की जाती है। आंसर फास्ट, सबकी देखभाल अच्छे से की जाती है। द केयर ऑफ एवरीवन इज डन वेल। तो जुगाड़ इंग्लिश कर दिया, और इसको बेहतर बनाइए। देखभाल करने के लिए आप, जब आप केयर लगा रहे हैं, यहाँ पर टेकन केयर कर सकते थे ना, टेक केयर मतलब देखभाल करना, टेकन केयर हो जाता है ना, उसको उस तरह बना के देखिए। ठीक है, टेकन केयर के साथ बना के देखिए सभी लोग, सबकी देखभाल अच्छे से की जाती है। ये टेकन केयर का भी यूज कर सकते हैं, जहाँ केयर लगा है। सबकी देखभाल, द केयर ऑफ एवरीवन इज डन वेल केयर, टेकन केयर के साथ बना सकते हैं। अभी बस एक ही आंसर मुझे सही लगा है, वो सावित्री जी का है बस। कीजिए जल्दी कीजिए, टेकन केयर के साथ भी कर सकते हैं। सबकी देखभाल अच्छे से की जाती है, वेट फास्ट। आप लोगों को आवाज आ भी रही है मेरी, नहीं आ रही? अब आया मुझको। द केयर ऑफ एवरीवन इज टेकन केयर, नहीं ऐसे कैसे कर रहे हैं, एवरीवन इज टेकन केयर ऑफ, टेकन केयर ऑफ
वेल कर सकते थे, डायरेक्टली प्रॉपरली कर सकते थे। गुड, गुड आपका एज एन एडवर्ब कैसे यूज कर लेंगे? यहाँ पर आप प्रॉपरली कर सकते थे, टेकन केयर ऑफ, और उसके बाद प्रॉपरली यूज कर लीजिए, वेल यूज कर लीजिए, गुड मत यूज कीजिए। एवरीवन इज टेकन केयर ऑफ वेल, दैट्स परफेक्ट। टेकन केयर ऑफ वेल, सबकी देखभाल अच्छे की जाती है, सबकी के लिए, की के लिए आपने ऑफ लगा दिया, बिल्कुल सही है। एवरीवन इज टेकन केयर ऑफ वेल, या प्रॉपरली भी कर सकते हैं। बढ़िया। ठीक है, या एवरीवन इज ट्रीटेड वेल, वो भी सही था। आप बताएंगे, यहाँ बाइक रिपेयर होती है, यहाँ बाइक रिपेयर की जाती है, या यहाँ बाइक रिपेयर होती है? जल्दी से बताएंगे। इस तरह से पैसिव वॉइस का आप यूज करते हैं, यहाँ बाइक रिपेयर होती है, या यहाँ बाइक रिपेयर की जाती है। अतुल जी का रिस्पॉन्स आया है, द बाइक इज रिपेयर्ड हियर, हियर बाइक इज गेट रिपेयर। नहीं, गेट, गेट लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, बाइक रिपेयर करवाने के लिए होता है, सब चीज आप कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, गेट की नीड ही नहीं है अब यहाँ पे। यहाँ बाइक रिपेयर होती है, या यहाँ बाइक रिपेयर की जाती है, करवाई जाती नहीं। यहाँ बाइक रिपेयर होती है, सिंपल सी बात। बाइक रिपेयर की जाती है, किसके द्वारा की जाती है उससे मतलब नहीं है। बाइक रिपेयर की जाती है कहाँ? यहाँ। बाइक रिपेयर की जाती है यहाँ, यहाँ के लिए लगा दीजिए आप हेयर। दीपा जी का आया है, द बाइक इज रिपेयर्ड हेयर। आप हेयर के बाद कॉमा लगा के भी कर सकते हैं इसको, यहाँ बाइक रिपेयर होती है, हेयर कॉमा, द बाइक इज रिपेयर्ड, वो भी सही होगा। लास्ट में भी हेयर लगा के जा सकते हैं। द बाइक इज रिपेयर्ड हेयर इज करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हेयर द बाइक इज रिपेयर्ड, दैट्स ऑल्सो करेक्ट, कॉमा लगा के। आगे बताएंगे, इस तरह से आप सारे बना सकते हैं। ठीक है, पैसे वॉइस का हमें ये यूज देखने को मिलता है। ठीक है, उन्हें पॉपुलरली जाना जाता है, या लोकप्रिय ढंग से जाना जाता है। उन्हें लोकप्रिय ढंग से जाना जाता है, उन्हें लोकप्रिय ढंग से जाना जाता है। लोकप्रिय ढंग से के लिए पॉपुलरली का यूज कर लीजिएगा। उन्हें लोकप्रिय ढंग से जाना जाता है, या उन्हें पॉपुलरली जाना जाता है। सावित्री जी ने किया है, दे आर पॉपुलरली, पॉपुलरली कीजिए ना, पॉपुलरली, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नोन, ही इज नोन वाइडली। उन्हें अगर इन द सेंस अगर हमने एक वचन लिया है तो ही बिल्कुल सही है, ही इज नोन वाइडली कर सकते हैं, पॉपुलरली भी कर सकते हैं। उन्हें, अतुल जी का और उनका सेम कैसे आ रहा है? ही इज नोन वाइडली, ही इज नोन पॉपुलरली, ठीक है। आपने उन्हें यहाँ पर एक व्यक्ति लिया है, सम्मान के लिए हमने उन्हें बोला, ठीक है, उस तरह से करेंगे तो ही हो सकता है, बिल्कुल सही है। और उन्हें बहुत सारे लोग लेंगे तो दे आ जाएगा। ही इज पॉपुलरली नोन, नोन भी कर सकते हैं, और ही इज नोन पॉपुलरली भी कर सकते हैं। दे आर नोन पॉपुलरली भी कर सकते हैं, वो भी सही है सावित्री जी आपका, दे आर पॉपुलरली नोन, है ना। उन्हें लोकप्रिय ढंग से जाना जाता है, दे आर पॉपुलरली नोन, ही इज पॉपुलरली, ही इज वाइडली नोन, है ना। दे आर पॉपुलरली नोन, करेक्ट। ही भी आपका हो सकता है, दे भी हो सकता है, सेंस समझिएगा। हिंदी में उन्हें की इंग्लिश तो दे होती है, उस हिसाब से दे करेंगे, बट हम सम्मान देने के लिए बोलते हैं कि उन्हें लोकप्रिय ढंग से जाना जाता है, तो हिंदी में हम किसी एक व्यक्ति के लिए भी उन्हें का उपयोग कर सकते हैं, तो वहां पर ही हो जाएगा, ही इज पॉपुलरली नोन। ठीक है, ही इज नोन पॉपुलरली, या ही इज पॉपुलरली। बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। और बताइएगा, यह काम स्वीपर के द्वारा किया जाता है, यह काम स्वीपर के द्वारा किया जाता है, यह काम, दिस वर्क, यह काम स्वीपर के द्वारा किया जाता है। किसी ने पूछा ये काम कौन करता है, अरे भाई दिस वर्क इज, बताएंगे हम लोग, यह काम स्वीपर के द्वारा किया जाता है। दिस वर्क इज डन बाय स्वीपर, या द स्वीपर, दिस वर्क इज डन बाय स्वीपर, आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, सावित्री जी ने, अतुल जी ने। और कुछ पॉसिबल है, बताएं।
बिल्कुल सही कर रहे हैं। दिस वर्क इज डन बाय स्वीपर, दैट इज करेक्ट आंसर। यह काम स्वीपर के द्वारा किया जाता है। दिस वर्क इज डन बाय द स्वीपर, करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ऐसे आप कुछ भी ले लो, एनीथिंग यू से ना। रोड बनाया जाता है, सड़क निर्माण किया जाता है, कंस्ट्रक्ट का यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे साइड पे। सड़क बनाई जाती है, या सड़कें बनाई जाती हैं तो रोड कर लेंगे। ठीक है, सड़क बनाई जाती है तो रोड कर लेंगे। सड़क बनाई जाती है, सड़क बनाई जाती है, कंस्ट्रक्टेड का यूज कर सकते हैं। रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड। अच्छा, और कौन सा वर्ड का यूज कर सकते हैं बताइए? मेक वर्सेस बिल्ड में कौन सा वर्ड आ सकता है? सेंटेंस आपका सेम ही है, सड़क बनाई जाती है। अगर मेक वर्सेस बिल्ड में आपको चूज, बिल्ड में, बिल्ड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, चूज करना हो तो क्या आप करेंगे? जनरली क्या चूज करेंगे? जनरली आप चूज करेंगे बिल्ड, मेड, मेड। देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने आपको बता दी, कंस्ट्रक्टर का यूज कीजिए। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी आप क्या रख सकते हैं? तीन वर्ड आपके सामने दिख रहे होंगे, एक कंस्ट्रक्ट है, एक मेक है, और एक बिल्ड है। तो इन तीनों में हम डिफरेंस समझते हैं, आप थोड़ा सा आंसर कीजिए, हमें डिफरेंस देखिए। बिल्डेड नहीं होता, बिल्ट होता है। समझ लेते हैं डिफरेंस। अच्छा, एक अच्छी चीज आ गई यहाँ पे। जब हम बिल्ड की बात करते हैं, सुनिएगा, इसके बाद आप लोग आंसर डिस्कस कर सकते हैं। तो बिल्ड आपका होता है कोई चीज जिसमें अलग अलग पार्ट्स को लगा करके, जोड़ जाड़ के, हथौड़ा वगैरह मार के हम जब करते हैं, या फिर कोई, मतलब हथौड़ा क्या, उसमें कुछ भी करो, जैसे बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी क्या, सीमेंट वगैरह लगा दिया, थोड़ा ईंट बीट लगा दिया, सेट किया, अलग अलग पार्ट्स है ना, छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको मिला करके बनाया आपने, तो बिल्ड आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं बिल्ड इज नथिंग बट टू मेक समथिंग बाय पुटिंग पार्ट्स टुगेदर, है ना। यूजुअली फिजिकल स्ट्रक्चर। तो जैसे हाउस हो गया, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, कंपनी हो गया, इनके लिए आप बिल्ड का यूज कर सकते हैं। क्यों? रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पर पार्ट्स मिला करके, बहुत सारे चीजें हैं ना, डामर है, गिट्टी है, पेबल्स, तो इन सबको मिला करके आप बना रहे हैं। कॉन्स्ट्रक्ट का यूज हम देखेंगे। अच्छा, आप बताएंगे डामर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जरा ढूंढिएगा और बताइएगा, अच्छी मीनिंग उसकी। मटेरियल, द वेस्ट मटेरियल होता है, उसका नाम क्या होता है बताएंगे? बताएंगे सब लोग। बाकी कॉन्स्ट्रक्ट का देखते हैं हम लोग। कॉन्स्ट्रक्ट जो वर्ड है आपका, जनरली आपका फॉर्मल वे में यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्ट वर्ड की जब बात करेंगे तो कॉन्स्ट्रक्ट आपका फॉर्मल वे में होगा। एग्जांपल मैं ढूंढ रहा हूँ, जैसे रोड भी है, वो एक्चुअली में फॉर्मल ही बहुत है, क्योंकि ऑफिशियली किया जाता है, राइट। और ब्रिज जैसे हो गया, ब्रिज, वहां पर भी ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया। इवन बिल्डिंग्स में भी कंस्ट्रक्शन का यूज होता है, राइट। तो कोई चीज, समथिंग विच इज फॉर्मल और टेक्निकल, बेसिकली यूज्ड, लाइक इंजीनियरिंग हो गया, कोई कोई योजना बना करके कोई काम करना, उसमें कंस्ट्रक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसको। तो हमने यहाँ पे बात की कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट बस एक तरह से आप, कोई भी चीज बन रही है, किसी का निर्माण हो रहा है, और वो फॉर्मली हो रहा है। जैसे मान लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई जाती है, इसको ट्रांसलेट करेंगे। कोल tar इज थिक डार्क लिक्विड, आप लोग आंसर कर रहे हैं। जनरली हम इसमें क्या, आपने बहुत सारे आंसर कर दिए, कोल tar कर लिए, एस्फॉल्ट कर दिया, बिटुमेन, बिटुमेन रोड कर दिया, रोड लगा दिया। जनरली कोल tar का यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है,
टार बोलते हैं या कोल टार बोलेंगे, ठीक है, ये बोला जाता है। हालांकि डामर जो वर्ड है वो भी आपका यूज कर सकते हैं आप इन इंग्लिश एज वेल, स्पेलिंग उसकी DAMMAR हो जाए, बट आपने जो वर्ड ढूंढा है अच्छा है, कोल टार बोल सकते हैं बॉस, ठीक है, कोल टार इज द राइट वर्ड। बाकी बिटुमेन ये भी हो सकता है, एसफॉल्ट, ये वो एक बार चेक कर लीजिए, कोल टार इज करेक्ट वर्ड दैट सेंस। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की बात